آپ مجھے بتائیے ڈیٹا کے مطابق تقریباً 8 لاکھ وقف پراپرٹیز پورے انڈیا میں ہیں، یعنی تقریباً 1.2 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے ہمارے پاس. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ صاحب کتنی بڑی زمین ہے. میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کروں گا، انگریزی میں بولتے ہیں سلیپنگ جائنٹ، جس کو اردو میں بولتے ہیں سویا ہوا شیر. شیر سو رہا ہے اسے خبر ہی نہیں ہے. اور یہ اتنے امیر ہیں ہندوستان کے مسلمان، اتنے امیر ہیں، اتنے بلینئر ہیں، مطلب کوئی امبانی اڈانی کیا، کس سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں انڈین مسلمز کا؟ اتنا امیر ہے ہندوستانی مسلمان کہ 1.2 لاکھ ایکڑ زمین کے مالک ہیں. کیا ہم کسی اڈانی کے پاس ہیں، کسی امبانی کے پاس ہیں؟ اس کے باوجود بھی آپ کی غربت میں زندگی گزارتے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ وکٹم ہوڈ کہتے ہیں، ہم وکٹم ہیں، ہم بہت بڑے پسماندہ ہیں. اس کے باوجود یہ سب ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے آپ مجھے بتائیے؟ اس کا مطلب یہی ہے آپ نے زمینوں کو ایسے ہی چھوڑ رکھا تھا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، اس کا کوئی یوز نہیں، استعمال نہیں، تبھی تو یہ ہو رہا ہے. دیکھیے قرآن کی آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے. شکر کو سمجھ لیجئے، شکر کا ایک پہلو یہ بھی ہے اس کا درست استعمال، اس کا درست استعمال بھی شکر ہے. تو اب میں اسی لحاظ سے بولوں گا کہ اگر تم میری نعمتوں کا درست استعمال کرو لازیدنکم، تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے اور ان کا استعمال نہیں کرو گے، ٹھیک سے دیکھ بھال نہیں کرو گے، ان عذابی لشدید. تو مجھے لگتا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی آیت کا مصداق ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. شکشا کو خود شکشا کی ضرورت ہے، شکشا کو شکشت کرنے کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں جو شکشا دی جا رہی ہے، جو تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے، وہ نہ ہمارے اندر دینی شعور پیدا کرتی، نہ قرآن کی فہم پیدا کرتی، نہ لیڈرشپ اسکلز ہمارے اندر پیدا کرتی، نہ زمانے کی سمجھ ہمارے اندر پیدا کرتی، نہ صاحب مطلب اس سے کوئی بھی مسئلہ ہمارے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ شکشا کے نام پر مجھے جو کچھ دیا جا رہا ہے صاحب، اس میں اور اے شکشا دونوں میں کوئی بہت زمین آسمان کا فرق نہیں ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ شکشا کے جو مطلب کہیں گڑبڑ رہ گئی نا شکشا میں. مطلب آپ سوچیے ذرا، پچھلے 150 سالوں سے ہندوستانی مسلمانوں میں شکشا کی تحریک چلی ہوئی ہے. حالانکہ سر سید سے پہلے ہی یہ تحریک شروع ہو گئی تھی، تاریخی ڈیٹا یہی بتاتا ہے. تاہم اگر اس کا آغاز صرف سر سید سے بھی مان لیں، اگر وہاں سے بھی مان لیں، تو اب دیکھیے تقریباً 150 سال ہونے کو آئے اس تحریک کو شروع ہوئے، اس مہم کو شروع ہوئے. صاحب 150 سال سے ہم تعلیم 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 کے رٹ لگائے جا رہے ہیں. مگر یاد رکھیے جو تعلیم بڑھتی ہے وہ ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں. ہم 1857 میں جہاں کھڑے تھے 1947 میں اس سے بہت پیچھے تھے. ہم آج 2025 میں جہاں کھڑے 1947 میں جہاں کھڑے تھے 2025 میں اس سے بہت پیچھے آ گئے. اخلاقی لحاظ سے، اپنے اثر و نفوذ کے لحاظ سے، اپنے مالی لحاظات کے لحاظ سے ذرا ڈیٹا نکل کر دیکھیے. تو جیسے جیسے شکشا بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ہمارے حالات پیچھے جا رہے ہیں. جو دوا کی وہ مرض بڑھتا گیا. وہ کیسے ہمارا؟ اس لیے ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو شکشت کریں، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ شکشا کو شکشت کریں. مسلمانوں کے دھارمک جو لوگ ہیں، مولانا ہے، اور خاص طور سے مسلم کمیونٹی کو اس طریقے کی جو بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس سے بڑا خطرہ ہے، جو وقف پراپرٹی ہے، سرکار اس کو ہڑپنا چاہتی ہے، مسلمانوں کے جو ہے ادھیکار چھیننا چاہتی ہے، اس پر آپ کے کیا وچار ہے؟ دیکھیے سرکار کی انٹینشن کیا ہے کیا نہیں ہے یہ میرا اس وقت اصل ٹاپک نہیں ہے. میرا مطلب اصل بات دیکھنے کی ہے کہ جو بل آج لوک سبھا میں پیش کیا جا رہا ہے اس کی میرٹ اور ڈی میرٹس کیا ہیں، ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. انٹینشن کو ہم ٹارگیٹ کرنے کے بجائے اس کی میرٹ اور ڈی میرٹ پر بات کریں. تو اگر مجھ سے اس کی میرٹ اور ڈی میرٹ پر بات کرنے کی بات کی جائے گی تو میں عرض کروں گا کہ اس میں کچھ میرٹس ہیں کچھ ڈی میرٹس ہیں. مثلا اس کی ایک میرٹ یہ ہے، اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ صاحب وقف پراپرٹیز کو ان کا سینٹرل اوورسائٹ کرنے کے لیے، ایک یعنی ان کی نگہبانی کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک باقاعدہ سسٹم بنایا جا رہا ہے جس کے ذریعے ایک ایک پراپرٹی رجسٹرڈ ہوگی، ایک ایک پراپرٹی پر سرکار نگاہ رکھے گی، ایک ایک پراپرٹی کا حساب رہے گا، اس کا آڈٹ ہوگا. تو یہ چیز بہت اچھی ہے. اس سے ایفیشنسی آئے گی، اس سے ٹرانسپیرنسی آئے گی، اس سے وقف پراپرٹی کا صحیح استعمال کی جانب ایک قدم ہوگا. میں اس کی تعریف کروں گا. لیکن اس کی ایک ڈیمیرٹ بھی ہے اسی بل کی. مثلا سرکار نے بس صاف کر دی ہے کہ رجسٹرڈ جو وقف پراپرٹیز ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جو پراپرٹیز رجسٹرڈ نہیں ہیں تو سب اور خاص طور پر وہ پراپرٹی جس پر ڈسپیوٹ ہے، انرجسٹرڈ بھی ہیں اور ڈسپیوٹ بھی ہیں، تو سب ان پہ مسئلہ ہوگا. تو دیکھیے محترم مطلب این ڈی یو پی سے میں کروں گا تو مسئلہ کہاں آ رہا ہے، اس کی بڑی ڈیمیرٹ جو آ رہی ہے وہ یہ کہ وقف پراپرٹیز میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے، بہت بڑی تعداد کہ جن کا کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے.
क्योंकि पहले क्या होता था, ओरल ट्रेडिशन से लोग वक्फ कर दिया करते थे, जबानी तौर पर कह दिया। अब उसके लिए तहरीर देना और सब डॉक्यूमेंटेशन कराना, उसका कोई रिवाज नहीं था, ये प्रैक्टिस नहीं थी। तो उसके नतीजे में क्या मसला होगा कि जिनके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, जिनके कोई डीड नहीं है, जिनके कोई इस तरह की चीजें नहीं है, कागज नहीं है, उनको कैसे साबित करेंगे आपके वक्फ है? इस तरह की जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए बिलाशुबा एक बड़ा मसला पैदा करेगा। तो क्या जिस तरीके की प्रॉपर्टी आप बता रहे हैं उनके लिए बड़ा मसला पैदा होगा। अब अगर वो प्रॉपर्टी ऐसे ही छोड़ दी जाए तो खासकर मुसलमानों को उससे क्या फायदा होगा और सरकार से को उससे क्या नुकसान होगा, इस पर क्या कहेंगे आप? यानी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, गालिबन आप ये कह रहे हैं? भाई देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टीज ऐसे ही छोड़ दी हुई थी हमने, गुज़िश्ता 78 सालों की बात करूंगा मैं, 1947 से हमने ऐसे ही छोड़ रखी है। आप उससे देख सकते हैं क्या फायदा हुआ, आम मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा है उससे, ऐसे ही छोड़ने में। तो ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता, उसके लिए कोई सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। और मैं यहाँ अर्ज करूंगा शहजाद साहब कि ये सिस्टम वजूद में लाना असलन हमारे कायदीन और हमारे मिली लीडरों की जिम्मेदारी थी। हमने ऐसे ही छोड़ रखा था, तो ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता, हमें विजन डेवलप करना होगा। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, बस मैं अब अपने कैराना की बात करता हूँ। मेरी जानकारी के मुताबिक सिर्फ शहर कैराना की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कई 100 करोड़ रुपए की वक्फ प्रॉपर्टी है। कैराना शहर की बात कर रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ करोड़। आप जरा मुझे बताइए, कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अगर किसी शख्स के पास हो और वो गुर्बत में भीख मांग रहा हो, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? बेवकूफ, अहमक, पागल कहा जाएगा। आप ये कहेंगे ना, हमारी कम्युनिटी क्या कर रही है? कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, अगर कभी जरूरत हो मैं डेटा फराहम कर सकता हूँ। डेटा फराहम करते हैं? मैं डेटा फराहम कर सकता हूँ अगर कभी जरूरत हो, मतलब मैं क्लेम को जो कर रहा हूँ तो एविडेंस होगी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जरा मुझे ये बात बताइए, ये कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का अगर दुरुस्त इस्तेमाल यहाँ हो कैराना में, आप मुझे बताइए शहर कैराना के मुसलमानों की तस्वीर क्या होगी? चेंज हो जाएगी, बहुत अलग हो जाएगी साहब। अब और आपने क्या किया हुआ है? अब मुझे बताइए, कैराना की अगर हम बात करें, इन वक्त प्रॉपर्टीज के जरिए से अगर हॉस्पिटल बने, कॉलेज बने, मैं कहूँगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने या शॉपिंग मॉल बने, और साहब हाउसिंग फ्लैट्स बनाए, आप गरीब मुसलमानों के फ्लैट्स बनाए, किराए पर दें साहब, तो आप जरा देखिए क्या हमारे यहाँ गुर्बत रहेगी? नहीं रहेगी। उसके लिए आप स्टार्टअप कायम करें, नए स्टार्टअप कायम करें, बिजनेस एकेडमीज कायम करें, गुर्बत रहेगी कैराना में? नहीं रहेगी साहब। मगर इसके बावजूद गुर्बत है, तो उसकी वजह ये कि आपने ऐसी छोड़ी हुई है, इसलिए ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। अब हमें सोचना पड़ेगा इनका करना क्या। तो मतलब आप बात तो ये इशारा, इन बातों से एक तरफ इशारा ये जा रहा है कि जो आम मुस्लिम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, वो इसके कसूरवार है, या मुस्लिम कौम की जो निगहबानी और जो अपने आप को जो सदर कहते हैं, अपने आप को जो इनका जिम्मेदार कहते हैं, वो जिम्मेदार है? दोनों में से कौन से जिम्मेदार है? मैं देखिए, कुरान का बयान है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। तुम्हारे जो हालात है ना, वो खुद तुम्हारे ही पैदा किए हुए हैं। आज ये जो हमारे हालात हैं वक्त के ताल्लुक से भी हम करें, वो हमारी पूरी कम्युनिटी के पैदा किए हुए हैं, जिसमें सब लोग शामिल हैं। अगर लीडर शामिल है तो फॉलोअर्स भी शामिल हैं। लीडर इसलिए शामिल है क्योंकि उन्होंने उसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया, और फॉलोअर्स इसलिए शामिल है कि उन्होंने कभी सवाल नहीं किया। तो दोनों ही शामिल हैं। ये तो मैं तो दोनों लोगों को कसूरवार मानता हूँ। लेकिन एक बात समझिए मुफ्ती साहब, आम नागरिक को तो वो पैसा खर्च कर रहा है। मदरसे के अगर कोई लोग जाते हैं तो मदरसे को चंदा देता है, मस्जिद के कोई लोग जाते हैं तो मस्जिद का चंदा लेते हैं, और धार्मिक मामलों में आम आदमी तो अपना पैसा खर्च कर रहा है। तो फॉलोअर्स कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या फॉलोअर्स को जिम्मेदार लोगों ने वो शिक्षा फराहम करनी थी या नहीं करनी थी? फॉलोअर्स कहाँ के जिम्मेदार है? मैं फिर अर्ज करूंगा, बात एक तरफा नहीं है। देखिए, कौमें जब तबाह होती हैं, और जो जवाल की तारीख पढ़ी है कौमों की, तो उसमें दोनों ही लोग जिम्मेदार होते हैं, लीडर भी, एलिट्स भी और अवाम भी। लीडर्स उनको गुमराह करते हैं, लीडर्स उनको सही तालीम नहीं देते, लेकिन फॉलोअर्स वो भी तो सही तालीम लेना नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम ये, वो भी तो अंधभक्त बने रहना चाहते हैं। वो क्वेश्चनिंग माइंड नहीं पैदा करते अपने अंदर, क्वेश्चन नहीं करते, चीजों को चैलेंज नहीं करते, ट्रेडिशंस पर सवाल नहीं उठाते। तो जिम्मेदार दोनों लोग होते हैं। और फिर दूसरी बात, देखिए, खालिस मौलवियों को, खालिस लीडरों को ब्लेम करने से बात नहीं बनेगी। आप मुझे बताइए, जब कोई प्रॉपर्टी, वक्त प्रॉपर्टीज हमारी अनयूज्ड पड़ी हुई है, अनटैप्ड पड़ी हुई है, क्या ये बात हमारे अवाम को मालूम नहीं है? अवाम तो मुफ्ती साहब, अवाम तो अनपढ़ है ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी। शिक्षा के मामले में तो बहुत ज्यादा इनका जो है पीछे है। जो अगर सवाल चल रहे हैं, खुद धार्मिक जो हमारे जिम्मेदार लोग, वो भी कहते हैं कि मुसलमान तालीम के, एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं। तो जनता को तो पीछे रखा गया या जनता खुद रही है? दोनों ही चीजें, मैं अर्ज करूंगा, दोनों ही चीजें। लोग पीछे रखना चाहते हैं, कुछ लोग पीछे रखना चाहते हैं, कुछ लोग पीछे रखना चाहते हैं, ये भी एक हकीकत है। अक्सर लोग पीछे रहना चाहते हैं, इसमें क्या किया जा सकता है? दोनों चीजें। एक सवाल है, मदरसों की कमी नहीं, पहले इतने मदरसे नहीं थे, मस्जिदों की कमी नहीं, तो फिर
قوم शिक्षा की तरफ इतने पीछे क्यों है? जब मदरसे इतने ज्यादा है, मस्जिद इतनी ज्यादा है, और फिर एक सवाल इसमें आता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम थी वो तो एक बंदे को लीडरशिप बनाती थी, लीडर के तौर पर उभारती थी, तो ये जो आज की पढ़ाई है, चाहे तो ये फेल नजर आती है या फिर जो है एक तरीके से नाउजुबिल्लाह फेल की तरफ तो ये जा नहीं सकती, तो फिर कहीं ना कहीं इन मदरसों की, मस्जिदों की में रहने वालों की कमी हो सकती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं ये बात बार बार चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कह रहा हूँ, मैंने इस पर अखबारात में लिखा है, मैंने इस पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में ये बात बबांगे दुहल कही है, और अभी भी फिर कहता हूँ, ये जो हमारे यहाँ नैरेटिव बना है, ये हमारे यहाँ जो बयानिया बना है कि साहब मुसलमानों में तालीम नहीं है, ये अधूरा बयानिया है और किसी हद तक गलत भी। हमारा असल मसला ये है ही नहीं कि हमारे यहाँ तालीम नहीं है। असल ये देखिए, अभी आपने कहा मदरस बहुत है, जनाब मदारिस बहुत हैं, मसाजिद बहुत हैं, सब दीनी इदारे बहुत हैं, दीनी इदारों के अलावा स्कूल्स बहुत बन रहे हैं मुसलमानों के, हर शहर में कॉलेज खुल रहे हैं, अब तो यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं, क्या क्या हो रहा है। आप शहर कैराना में देखिए कि बहुत बड़ी तादाद में आपको ग्रेजुएट्स मिल जाएंगे, पीजीज मिल जाएंगे, मौलवीज मिल जाएंगे। क्या शिक्षा के बगैर होगा ये सब? नहीं, तो शिक्षा तो है ना। इसलिए असल मसला ये नहीं है कि शिक्षा नहीं है हमारे यहाँ, मेरे नजदीक असल मसला वो है कि शिक्षा को जिन खुतूत पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए थे, उन खुतूत पर शिक्षा नहीं है। मैंने पिछले साल एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दौर जदीद में अब शिक्षा को खुद शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा को शिक्षित करने की जरूरत है। असल मसला यह है कि अब हमें जो शिक्षा दी जा रही है, जो तालीम हमें दी जा रही है, वो न हमारे अंदर दीनी शऊर पैदा करती, न कुरान की फहम पैदा करती, न लीडरशिप स्किल्स हमारे अंदर पैदा करती, न जमाने की समझ हमारे अंदर पैदा करती, न सब मतलब उससे कोई भी मसले हमारे हल नहीं हो रहे हैं। तो असल मसला ये है कि शिक्षा के नाम पर मुझे जो कुछ दिया जा रहा है साहब, उसमें और अशिक्षा दोनों में कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं है। सोचने की बात यह है कि शिक्षा के जो मतलब अब कहीं गड़बड़ रह गई ना शिक्षा में। मतलब आप सोचिए जरा, पिछले 150 सालों से हिंदुस्तानी मुसलमानों में शिक्षा की तहरीक चली हुई है। हालांकि सरसई से पहले ही ये तहरीक शुरू हो गई थी, तारीखी डेटा यही बताता है। ताहम अगर इसका आगाज सिर्फ सरसई से भी मान लें, अगर वहां से भी मान लें, तो अब देखिए तकरीबन 150 साल होने को आए उस तहरीक को शुरू हुए, उस मुहिम को शुरू हुए। साहब 150 साल से हम तालीम 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 की रट लगाए जा रहे हैं, मगर याद रखिए जो तालीम बढ़ती है वो हमारे हालात खराब होते हैं। हम 1857 में जहां खड़े थे 1947 में उससे बहुत पीछे थे। हम आज 2025 में जहां खड़े 1947 में जहां खड़े थे 2025 में उससे बहुत पीछे आ गए। अखलाकी लिहाज से, अपने असर और नफूज के लिहाज से, अपने माली लिहाजात के लिहाज से जरा डेटा निकल कर देखिए। तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे हालात पीछे जा रहे हैं। जो जो दवा की वो मर्ज बढ़ता गया। वो कैसे हमारा? इसलिए हमारा असल मसला ये नहीं है कि हम लोगों को शिक्षित करें, हमारा असल मसला ये है कि शिक्षा को शिक्षित करें। हमारा असल मसला ये है कि हम रुक कर अब सोचें, अंग्रेजी में बोलते हैं रीथिंक, अब ठहर जाए, एक पॉज लें, सोचें कि सब ये शिक्षा के नतीजे क्यों नहीं निकल रहे हैं। यानी असल मसला ये है ही नहीं कि तालीम नहीं आ रही, असल मसला ये है कि तालीम के नतीजे नहीं आ रहे हैं। तो अब तालीम कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, जगह जगह जो तालीमी कॉन्फ्रेंस होती है उसकी जरूरत नहीं है। अब जरूरत है नतीजे तालीम कॉन्फ्रेंस करने की, कि सब ये नतीजे क्यों नहीं आ रहे इस तालीम के। अगर हमारे मदारिस इतनी बड़ी तादाद में पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है तो हमारे अंदर दीनी शऊर क्यों बेदार नहीं हो रहा है, हमारे अंदर हमारे अखलाक क्यों बुलंद नहीं हो रहे, हमारा किरदार क्यों ऊंचा नहीं हो रहा है, हमारे अंदर कुव्वत क्यों नहीं आ रही है, हमारे अंदर हिम्मत क्यों नहीं आ रही है, हम बुज़दिल क्यों हो गए हैं, हम पिस्त हिम्मत क्यों हो गए हैं। अगर हमारे यहाँ इतने मदारिस मौजूद हैं, इस सब के बावजूद ये सब हो रहा है, तो आज हमें जरूरत किस चीज की? क्या ये और इदारे कायम किए जाए? नहीं, अब सोचने की जरूरत है कि गड़बड़ कहाँ रह गई है, इसको ठीक कीजिए। इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ बड़ी तादाद में कॉलेजेस कायम किए जा रहे हैं, इसके बावजूद हमारे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब है। हम सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हम SC ST से पीछे जा चुके हैं। हमारे हालात ये हैं कि अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो पॉलिटिक्स के मैदान में तो आप सिरे से इरिलेवेंट हो गए। इतने कॉलेज होने के बावजूद, इतनी यूनिवर्सिटियां होने के बावजूद, इतने स्कूल होने के बावजूद आपके सोशो इकोनॉमिक हालत खराब है, आपके पॉलिटिकल वजूद सिरे से मतलब इरिलेवेंट हो गया है, सोसाइटी में आपकी इज्जत पर एक मसला खड़ा हो गया है, मीडिया में आपको विक्टिम मतलब एक विलन बनाकर पेश किया जा रहा है। इतने कॉलेज और यूनिवर्सिटियां होने के बावजूद तो क्या जरूरत है इस बात की हम कॉलेज और बढ़ाएं, यूनिवर्सिटियां और बढ़ाएं, स्कूल में, या जरूरत इस बात की रुक कर सोचें कि व्हाट वेंट रॉन्ग, गड़बड़ कहां हुई है। इसी को मैं कह रहा हूं, शिक्षा को शिक्षित करने की जरूरत। अब हमें जरूरत सोचने की है, लेकिन सोचने को तो तैयार नहीं है भाई। तो जो लोग सोचने को तैयार नहीं हो तो उनके बारे में कुरान ने ऐलान कर दिया, ऐसे लोगों के ऊपर हम रिस्क डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? रिस्क डाल देते हैं, एक गंदगी डाल देते हैं, अजाब डाल देते हैं। कुरान ने क्लियर कर दिया इसको, और कुरान ने एक बात बिल्कुल साफ कह दी, अफला ताक़िलून,
क्या तुम इस दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते? कुरान ने साफ कह दिया, इन्ना शर्र दवाब इंदल्लाहि सुम्मुम बुक्मुन अल्लज़ीना ला याक़िलून, अल्लाह के नजदीक बदतरीन जानवर वो लोग अंधे बहरे गूंगे हैं जो अक्लों का इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर आप सोचते नहीं है तो जिम्मेदार कौन होगा? मेरे नजदीक आप सरकार पर भी सवाल खड़े कीजिए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है या नहीं। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि मैं अपने गिरबान में जाऊं, मैं क्या कर रहा हूं। तो क्या मुफ्ती साहब तस्वीर लेना, दाढ़ी रखना, टोपी कपड़े पहनना सब कुछ मजहब में यही है या इससे अलग भी कुछ मजहब है? ये तालीम में सब कुछ चाहिए या तालीम में इससे अलग भी कुछ तालीम है? इसको कुरान ने वाज़ह कर दिया, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब वलकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताब वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। आगे देखिए, आगे चल के एक जगह इसी आयत में आगे चल के कह रहा वस्साबिरीन फिल बअसाई वज़्ज़र्राई व हीनल बअस, और फिर इनके बारे में बयान कर रहा है यही सब लोग तक़वा वाले हैं। यानी इस आयत से मालूम हो, इस आयत में बता दिया गया है कि इस आयत का खुलासा ये है कि साहब नेकी, दीन, तक़वा वो सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत का नाम नहीं है। अगर आपको तक़वा कायम करना है तो कहा है वल-मूफ़ूना बिअहदिहिम, अपने कमिटमेंट को पूरा करने वाले बनिए। व अक़ामुस्सलाह, नमाजों को भी पाबंदी कीजिए। और कानून खुदाबंदी जितने किताबुल्लाह में बयान कर दिए गए उनकी पाबंदी कीजिए। और अपने आपकी जेब में जो पैसा है उसे गरीबों और कमजोरों पर खर्च कीजिए। और मुश्किल आ जाए तो हालात का मुकाबला करना सीखिए, ये इसी आयत में बताया गया। चैलेंजेस का मुकाबला करना सीखिए। और फिर कह रहा उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही है तक़वा वाले, यही है दीनदार। तो दीनदार, दीन इज नॉट अबाउट माई फिजिकल पोस्चर और साहब हाउ आई लुक, हाउ आई, इट इज नॉट, दीन इज नॉट अबाउट इट। दीन इसका नाम नहीं है कि साहब मैं सिर्फ टोपी लगाऊं, मैं दाढ़ी रखूं, मैं कुर्ता पहनूं और साहब मुझे दीन का क्रेडिट हासिल हो गया, मैं दीनदार हूं। दीन तो अखलाकी खूबियों का नाम है, दीन तो मेरे किरदार का नाम है। कुरान ने साफ कर दिया, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत के लायक वो है जो तुम में सबसे ज्यादा तकवा वाला हो। यानी सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल वो है जो उसका किरदार ऊंचा हो, कैरेक्टर ऊंचा हो। तो दीन मेरी मॉरल वैल्यूज का नाम है, अखलाकी इक़दार का नाम है, किरदार का नाम है, उस पर बात कीजिए। तो मतलब ये तमाम चीजें, अब क्या ये मान लिया जाए कि मुसलमान अब बेचारे हो गए हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मुसलमान बेचारे हैं। जुल्म हो गया है मुसलमानों पर। देखिए, ये बहुत कितनी गलत बात है। अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि इस वक्त भी हिंदुस्तानी मुसलमान बहैसियत कम्युनिटी, बहैसियत मिल्लत सवा लाख एकड़ जमीन के मालिक है। आप ईमानदारी से बताएं और सब चीजें छोड़ दें, आप सब चीजें एक तरफ रख दीजिए। जो कम्युनिटी सवा लाख एकड़ जमीन की मालिक हो वो बेचारी हुआ करती है, वो विक्टिम होती है, वो कमजोर हुआ करती है। प्रॉब्लम क्या रही है वो समझने की जरूरत है। हमारे कायदीन ने, हमारे रहनुमाओं ने हमारी ब्रांडिंग बहुत गलत की है। हमारी ब्रांडिंग ये की है कि साहब हम बेचारे लोग हैं, हम पसमानदा लोग हैं, हम गरीब और कमजोर लोग हैं। अरे भाई, जैसी आप ब्रांडिंग करेंगे उतनी वैल्यू आपकी तय होगी। कंपनियों से, मल्टीनेशनल कंपनी से ब्रांडिंग सीख लीजिए। भाई, बेचारे लोगों के साथ कौन पार्टनरशिप करना चाहेगा? पसमानदा लोगों के साथ कौन कौन उनको अपने बराबर का शरीक बनाना चाहेगा? आपको ब्रांडिंग करनी थी कि साहब वी आर नेशनल कंट्रीब्यूटर, हम इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं, हम इस देश को आगे चलाने वाले लोग हैं, हम इस देश की फाइनेंस में एक बड़ा रोल रखता है। आपको ये ब्रांडिंग करनी थी, आपको ब्रांडिंग करनी थी हम प्रोस्पेरियस लोग हैं। देखिए ब्रांडिंग का कितना फर्क पड़ता है, इसको समझिए जरा। जब आप बिल्कुल बेचारा हो गए, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया। जब बेचारा हो गए हैं तो बेचारों को इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता सिवाय मांगने के। बेचारों को तो भीख मिलती है, माफ करिए, माफ कीजिए मेरी बात को, मगर बेचारों को यही मिलता है इस दुनिया का, तो यही उसूल है। लेकिन जब आपकी ब्रांडिंग शानदार हो, जब आप ताकतवर हो, जब आप खुशहाल हो, जब आप कंट्रीब्यूट करने वाले हो, तो सब बड़ी बड़ी ताकतें फिर आपके साथ बैठती है, फिर आपसे मामला तय करते हैं। मैं एक मिसाल से वाज़ेह करूंगा इसको। अगर फर्ज कीजिए, अगर आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी होती है, ये सब हिंदुस्तानी मुसलमान टॉप के स्टार्टअप लगाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्रीज लगाते हैं, मुल्क की इंडस्ट्री में, मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, इनोवेशन करते हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं। ये अगर आपकी ब्रांडिंग होती तो जानते हैं क्या होता? जरा इसको समझिए आप। फिर ये होता, अभी आप जरा देखिए, दुबई से, वो कतर से आए थे, वो अमीर आए थे कतर के, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कितनी गले लगाकर उनका इस्तेमाल किया था। ठीक है, वो सारी चीजें हों, क्यों इस्तेमाल कर रहे थे वो? इसलिए कि सब ब्रांड ये है कतर का, जो बहुत बड़ा पैसे वाला मुल्क है, और वो पैसा लेके आए थे, जो पैसा हमारी हिंदुस्तान में कतर की कंपनियां हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेंगी। ठीक है, आप जरा सोचिए, यहां बहुत रुक के सोचने की बात है। कतर की कंपनियां हिंदुस्तान में वो पैसा इन्वेस्ट करेंगी, और उन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा जिनके 95% से ज्यादा मालिक मुसलमान है, तो नॉन मुस्लिम है, उन्हीं को तो वहीं तो इन्वेस्टमेंट होगा। मुसलमान है कहाँ वहां? है नहीं। अब आप मुझे बताइए, अगर हमारी ब्रांडिंग ये होती है साहब हम बिजनेस करना जानते हैं, हम कारोबारी लोग हैं, हम बहुत
कामयाब लोग हैं, हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास फाइनेंशियल इंक्यूबेटर्स हैं. ये अगर हमारी ब्रांडिंग होती तो कतर वो अपना पैसा कहाँ लगाता? अडानी और अंबानी के पास पहले लगाता या अथर और बद्री के पास पहले लगाता? अडानी अंबानी. नहीं साहब, समझिए जरा, अगर आपकी ब्रांडिंग ठीक होती तो किसके पास पैसा लगाता? जब ब्रांडिंग उन्होंने की है तो पैसा वहां लगेगा, ब्रांडिंग आपने की होती तो पैसा आपके पास लगता भाई. तो इसलिए ब्रांडिंग, ये बहुत गलत ब्रांडिंग हुई है. मेरे नजदीक इस ब्रांडिंग को बदलने की जरूरत है. हिंदुस्तान के मुसलमान बेचारा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. मैं इस परसेप्शन को बिल्कुल रद्द करता हूँ. हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले एक बहुत ताकतवर फोर्स है, और जरूरत इस बात की उसको ठीक से प्रेजेंट किया जाए और उसको ठीक से लीड किया जाए. तो मैं ये समझता हूँ अगले 10 से 20 सालों में हिंदुस्तानी मुसलमान ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं. उनका मुस्तकबिल बहुत रोशन है. वो हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक बहुत लीडिंग रोल अदा करने वाला है इंशाल्लाह. मैंने कहा था कि वो शख्सियत हैं कि अगर टाइम कितना भी लंबा लिया जाए तो इल्म जो है, जो जानकारी है, जो सच्ची जानकारी है, जिस जानकारी को हमसे छुपाया जा रहा है, जिस जानकारी को हमसे तालों में बंद करके रखा जा रहा है, उन जानकारी को अगर निकालना है तो मुफ्ती अतर शमसी साहब ने, कितना लंबा हम इंटरव्यू कर सकते हैं, वो तमाम जानकारी हमको इन्होंने फराहम की है.